the topic called time, speed and distance, right? I hope you have watched the videos on time, speed and distance. Yes, no? Deepanshu, you are part of the group? हाँ, अमन मैडम, जो हमारा टाइम टेबल है उसको डीपी लगा दो. Okay, sir. So it is so that everyone can see the timetable, right? Guys, we shall be following the timetable, and I hope you all have seen your this thing. You have done with you are done with this thing. What I say, you are with the updated on the timetable, and let's go ahead and do time, speed and distance questions. So in time, speed and distance, we have yeah, Pankaj. सर एक रेशियो प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन है, अभी पूछ सकता हूँ क्या? पूछो पूछो. सर जैसे कि जो हम जैसे रेशियो प्रोपोर्शन में दोनों मिक्सचर को मिक्स करके एक रिजल्टेंट मिक्सचर बनाए थे, तो उस टाइम पे अगर 3 इंग्रेडिएंट्स वाला आ गया तो उस टाइम पे उसका कुछ शॉर्टकट्स है क्या? देखिए, जब भी 3 इंग्रेडिएंट वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आता है, 3 इंग्रेडिएंट वाला क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट क्या है कि उसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता है. अच्छा अच्छा. There is no definite answer to a question which is a 3 ingredients. which is a 3, right? बोलो बोलो भाई. Yes sir. Okay, now what are the special cases when we can get the answer? The special cases are one of the mixture is like the mixture which we want to make. For example, 10%, 20% and 30% you want to make, right? So the mixture which is 20%, you want to make 20% only. Got it? So that 20% is insignificant. Whether you add, you don't add, or how much you add, it doesn't matter at all, right? So you can remove that. And you are left with 2 mixtures, and then you are left with a typical question. So you will get the ratio of those 2 mixtures, but not the third mixture. Got it? So that will not be considered as 100%, but still it will be a ratio. Yeah. That will be a ratio. You can add that ratio to any other ratio to get that value. Okay. For example, I'm giving you 10, 20, 30. You want to make 20. Right? So your ratio will be 1:1 for these 2 mixtures, first and the third. Right? And the second mixture, you can have any ratio. You can add 1 portion, 2 portion, 5 portion, whatever you add, that is okay. Because 20% added to 20% will give you 20%. Now the second type is you have 10, 20, 30 and you want to make 25. So there will be 2 mixtures on one side and 1 mixture on one side. So the 30th one, you have to use it definitely. Right? Among these 2 mixtures, you may use it, may not use it, and may use it in n number of values. But the 30th mixture has to be used. Yes? And the answer that you get is the probable answer. That is one of the answer, not the answer. Clear? Okay. So when we talk about time, speed and distance, we have 4 classes on time, speed and distance. The first class was basic of speed and distance, where speed is equal to distance upon time. Right? किन किन लोगों ने वीडियो देखा है? ठीक है, वेरी गुड. तो क्या क्या था भाई प्रीतम, व्हाट वाज ऑल देयर इन द वीडियोस? पहली वीडियो टाइम स्पीड डिस्टेंस की पहली वीडियो से मतलब लगातार तो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट याद नहीं है, लेकिन मतलब मैं बोल सकता हूँ. चलो देख लो भाई, अगर आप सीरियसली सीमैट करना चाहते हैं, seriously you want that you should get into a college, right? Then there is one compulsion, there is one requirement for you all guys. What is that? When you watch a video, make sure you make notes with that, right? Every video I say, okay, today we will do 5 type of question, today we'll do 4 type of question, today we'll do 3 type of question. Yes, no? So those 3 you should know. Okay, पहले मैंने करवाया भैया आपको convert करना.
राइट। Yes, sir. इसको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पहली चीज बताई। सेकंड चीज वी टॉक्ड अबाउट Average speed. एवरेज स्पीड। उसके 3 केसेस हैं एवरेज के, राइट। फिर हमने तू चल मैं आया जल्दी लेट वाला बोले बात। हाँ? Yes. अगर एक बंदा डिस्टेंस वही रहता है अलग अलग डिस्टेंसेस अलग अलग स्पीड रहती है, राइट। Yes, अगर वो 5 किलोमीटर से जाता है तो 4 मिनट लेट हो जाता है, 6 से जाता है तो 2 मिनट जल्दी आ जाता है। याद आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. तो दीज वर द क्वेश्चन। देन वी हैव द क्वेश्चन कि वो मिलेंगे कहाँ। एक बंदा इधर से जा रहा है, एक बंदा इधर से जा रहा है। इसमें डॉग वाला क्वेश्चन भी था, एक बंदा पहले चलता है, एक बंदा उसको कैच करने की कोशिश, Chor police. right? Chor and police, huh? Chor police thing. So this way you should be able to note down, sir, these are the 5 things that I could get it from this particular, right? ये वाले चीज में से ये 5 चीजें मिल रही है मेरे को। ठीक है। Now second thing is उसके बाद हमने ट्रेन्स वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, there were 5 cases of trains. Train crossing a कोई आदमी को first is stationary point. Man or pole. Like pole. Man or a Man or stationary pole. point. Train crossing a moving point, motorcycle, car, bus, running man. Train crossing a stationary length, bridge, tunnel, platform. Right. A train crossing another moving train, coming from the opposite direction, going in the same direction. And the last one was 2 cases combined. When you have 2 cases combined, एक केस दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, right? And then we talked about beta ji boats and streams, races, circular motion, right? ठीक हो गया? ठीक है, रेसिस में number of points they will meet, how many times they will meet, when they will meet at the starting point. Boats में क्या है भाई, downstream, upstream, right? Then the formula to calculate the value, downstream, upstream से water का speed. Vishwajit Patil, welcome. I hope you guys have joined recently. Vishwajit Patil and Dipanshu Goyal, right? Yes, sir. Ankit, are you here? Yes, sir. I'm here, sir. हाँ, so what is the issue with your camera today? लैपटॉप नहीं चल रहा था, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया हुआ सर। हमें मैनेजर बनना है, क्या बनना है? यस सर, वो आज की प्रॉब्लम है सर। हाँ, चलो ठीक है। सो वी वर आशीष गोयल, यार ये अपना ठीक कर, पीछे से ना तुम बड़ा रोशनी वाली साइड पे बैठ जाते हो, बैकग्राउंड ठीक करके बैठा करो यार। हाँ, कब सीखोगे? व्हेन यू विल बिकम नेटिजन्स, नहीं समझे? स्टार्ट लिविंग इन दिस वर्चुअल वर्ल्ड नाउ। Are you understanding? Yes, sir. And if you are still sitting in the bed like Puneet and attending the class, right, you are compromising on yourself. जैसे भूमिका भी बेड में बैठ के क्लास लगा रही है। ठीक है, कोई मैं भाई वहां आके चेंज नहीं कर सकता, बट यू आर मिसयूजिंग द अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू। अब सोचो यही क्लासेस आपको किसी कोचिंग सेंटर पे जाके लगाना पड़ता तो गाइज आधा घंटा जाने में लगता है, आधा घंटा आने में लगता है, राइट? टायरिंग अलग से होता है, ठंड में बाहर निकलना पड़ता। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। आपको नहीं पता चलता है, बाद में बंदा कहता है कि यार अच्छा ऐसा हो गया, यूं हो गया, कैट नहीं क्लियर हुआ, स्कोर नहीं आया इसमें। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हमारी हैबिट्स जो डेवलप हुई हैं वो मैनेजर वाली नहीं है, वो एक स्टूडेंट वाली है, राइट? आपको समझना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। बेटा जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो आई वाज सरप्राइज टू नो कि हमारा अटेंडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता अटेंडेंस?
क्योंकि अटेंडेंस, जिनको अटेंडेंस रखना पड़ गया उनका फायदा क्या रखने का भाई कंपनी में, बिकॉज मैनेजर्स आर एट ए पोस्ट हु मैनेज अदर्स। अब अगर मैनेजर को ही मैनेज करना पड़ जाए भाई फिर क्या होगा? नहीं समझे? ठीक, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तुम्हारा जॉब है, तुमने लोगों को जाके ठीक करना है भाई, कैसे, हाउ दे कैन बी मोर एफिशिएंट पीपल, हाउ दे कैन वर्क विद zeal and energy, because if you have to work in a functional role then don't come to management. Management means you want to lead, you want to lead a team of 5-10 people, and that's why you will be winning the trophy. भाई खेलते तो सारे हैं ना, कैप्टन भी खेलता है, बाकी सब प्लेयर, इनफैक्ट विकेट कीपर की ज्यादा बैंड बजती है, राइट, ऑलराउंडर की ज्यादा बैंड बजती है, बट टॉस करने के लिए और ट्रॉफी लेने के लिए, राइट, सबको नहीं बुलाते, नहीं, या स्पीच देने के लिए, how was the team, boys played well, who is invited, right? कैप्टन। ना कैप्टन को ही अगर भाई धक्का लगाना पड़े कि जा जा तू ले, है ना, तो फिर उस कैप्टन का फायदा क्या हुआ? समझ आ रही है मैम? हमने कैप्टन रखा है ताकि वो 11 बंदों को कंट्रोल कर सके, 11 बंदों के बिहाफ पे डिसीजन लेके, समझ आ रही है? अब कैप्टन के ऊपर थोड़ी कोई लगाएंगे जो कैप्टन का ध्यान रख सके, ठीक है? अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, बढ़िया मजेदार। आपने घर पे सिक्योरिटी गार्ड रखा है कि वो आपके घर की रक्षा करे। अब सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर थोड़ी सिक्योरिटी गार्ड को रखेंगे कि वो देखे कि सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, नहीं समझे? और अगर कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड रखा है जिसको आपको गार्ड करना पड़ रहा है, तो फिर आपने नहीं रखा है, उसने आपको रख लिया है। नहीं, तो इसीलिए बोलता हूं बेटा, जब आप मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ये मल्लिका, ये बेड पे बैठ के तुम पहले अच्छा भला चेयर पे बैठ के क्लासें लगाती थी, इतनी अच्छी तुम्हारी चेयर है। सर कल, आज से पक्का। अरे यार, आज से क्यों, व्हाई नॉट नाउ? सर वो, सर छोटे वाले ब्रदर की इंटर्नशिप शुरू हो गई है, तो वो अभी उस वहाँ पे मतलब यूज कर रहा है, इसलिए। फिर बाय वन मोर। यस सर। क्या करेंगे भाई, हमारे पास एक स्वेटर है, छोटे भाई को चाहिए, क्या करेंगे हम? दूसरा खरीदेंगे नहीं? यस। या रोटी अल्टरनेट डे खाते हो, एक दिन भाई खाता है, एक दिन तुम खाती हो? नहीं सर। Why we are optimizing on things unnecessarily? ऐसा किया, बेड को ऑप्टिमाइज किया कि 12 घंटे पप्पा सोएंगे, फिर अगले 12 घंटे मम्मा सोएंगे, फिर अगले 12 घंटे, टर्न बना लो। We can do that also, isn't it? यस सर। कर सकते हैं ना, ऐसा टर्न बना सकते हैं, नहीं? ऑप्टिमाइज, एक ही बेड से काम, पूरा फैमिली 3 शिफ्ट लगा लो, 8-8 घंटे, बोलो। नो सर। हाँ, नहीं कर सकते ना यार। सो दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये Yes. सोच बदलनी होगी हमको, समझ आ रही है? यस सर। अभी आपने मेरे को, यू फाइंड डाउनस्ट्रीम, यू फाइंड अपस्ट्रीम, you find time to reach with upstream versus time to reach with downstream, ratio of the downstream and upstream, right? And then the fourth class, last class, is on miscellaneous type of question, where we have, no, we are left with one type of question, that is races. yahan se chala banda, right? A beat B by A X meters, B beat C by D meters, how many meters A will beat B, right? And then we have questions, A beat B by 10 meters, then A gives a start of 5 meters and then beats by some seconds. These are the questions, right? So there are 3 type of question in that also. Okay, so let's go ahead and तो बेटा अभी कल से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो लोग लैपटॉप से क्लास नहीं लगा सकते, डेस्कटॉप से क्लास नहीं लगा सकते, बेड पे बैठ के क्लास लगाना चाहते हैं, वो बेटर है क्लास ना लगाए, ठीक है? सारी एनर्जी खराब हो जाती है, ठीक हो गया?
ठीक, make your arrangements till tomorrow. Okay, here comes the question, guys. Can you see the questions? Yes, sir. Yeah, first 5 questions and 6 minutes. 5 question, 6 minute. Done or you need 1 more minute? हो गया जाए, 1 मिनट और चाहिए? 5 क्वेश्चन हो गए। अंकित, चिराग, सर हो गए, हो गए। हो गए सर। Very good, very good. 2 trains start at the same time from Bangalore and Chennai and proceed towards each other at the rate 45 and 50. They found one train has traveled 120 more. So one train will travel 5 kilometers more than the other. Yes, One sir. will travel 5 more than other in 1 hour, right? So 45 is the speed of A, 50 is the speed of B, difference is equal to 5, total speed is equal to 95, isn't it? Yes, sir. So if difference is 5, total is 95, which is 19 times. Yes, no? What will happen after 1 hour? One would have traveled 45, second would have traveled 50 in 1 hour. So they would have traveled total 95 and the difference would be 5. तो इसने क्या दिया आपको? डिफरेंस दे दिया, टोटल पूछ लिया, तो 19 से गुना कर दो। 120 into 19, it gives you 2280. Got it, everyone? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, 40 की स्पीड से भाई साहब चल रहे हैं, 80 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रेस्ट करता है, मतलब 2 घंटे के बाद, राइट? Yes, sir. 20 मिनट रेस्ट करता है। इसमें फंडा क्या आएगा? क्योंकि 240 किलोमीटर चलना है तो 80 80 80 1 2 ही रेस्ट आएंगे, राइट? बोलो भाई, समझ आया या नहीं आया? Yes, sir. 6 or 14. 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 6 घंटे 40 मिनट, ना कि 7 घंटे। ठीक हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तेरे रेस्ट के पहले तो वो पहुंच ही जाएगा ना। एक चोर है, चोर मचाए शोर, 130 पे चलता है, 60 की स्पीड से चलता है, 2 घंटे में वो 120 अहेड हो गया। आधा घंटा है। आधे घंटे में सर। अच्छा, 2 PM, आधे घंटे में वो 30 किलोमीटर अहेड हो गया। ठीक हो गया? यस और सर। 10 की स्पीड से पकड़ रहा है उसको। चोर जो है, चोर को पुलिस 10 की स्पीड से पकड़ रही है, तो डिवाइड बाय 10, इट विल टेक 3 आवर्स। कब से 3 आवर्स? 2 o'clock से 3 आवर्स। 2 o'clock से 3 आवर्स, नन ऑफ दीज आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. कई लोग 4:30 लगा देते क्योंकि वो 3 आवर्स 1:30 में ऐड कर देते। नहीं, जब पुलिस ने भागना शुरू किया उस समय से 3 घंटे। ठीक है? ओके, वॉकिंग एट 10 किलोमीटर, गौरव रीचेस 2 hours अर्ली। अगर वो 15 पे जाता है तो 2 घंटे 40 मिनट अर्ली हो जाता है। मान लो डिस्टेंस D है, कितना डिस्टेंस है? D by 10 एंड D by 50, इसका डिफरेंस कितना है? 40 मिनट डिवाइड बाय 60। वाई 60? क्योंकि मेरी स्पीड जो है वो किस में है बेटा? किलोमीटर पर आवर में है। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। आ सकता है आंसर? देखो क्या आ गया? D by 10 माइनस D by क्या आया? 2D minus 3D। D10 by D15 आएगा। एक्चुअली उल्टा लिख दिया ना हमने, इधर लिखा। हाँ जी सर, वो माइनस को हम छोड़ देंगे। कोई नहीं, माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो 5D इज इक्वल टू 2 by 3 D20 आ गया। आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक हो गया? D20 आ गया। ठीक है? रेशो से भी कर सकते हैं ना इसको। सर ये आगे आएगा ना D by 10, क्योंकि ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये हाँ छोटा वो होगा। आगे आ जाएगा, शिफ्ट होगा।
हाँ, रेशो से भी हो जाएगा कई ना? बार नन ऑफ दीज है ना, इसीलिए नॉट ए गुड नहीं सर, आइडिया। रेशो से सर। रेशो से भी कर सकते हैं, पर उसमें टाइम निकलेगा। जैसे 4:3 होगी स्पीड की, हाँ जी सर। तो टाइम की रेशो हो जाएगी 3:4। हाँ जी। पहले 120 मिनट लग रहे थे, अब 160 मिनट लग रहे हैं। हाँ जी सर, 120 का वो 4 वाली स्पीड जो 10 किलोमीटर है, तो वो 20 किलोमीटर हो गई। नहीं बेटा, इससे डिस्टेंस टाइम आया ना। सर 120 किलोमीटर जो है 120 टाइम आ गया, 2 घंटे हो गए ना सर? 2 घंटे 10 वाले से आ गया, हाँ तो ये जी। 30 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल जी। सही है। पर इसमें पहले हम टाइम निकालेंगे, फिर स्पीड निकालेंगे। यस सर। ठीक है, चलो। ए बी सी आर ऑन ए ट्रिप। ए ड्राइव्स 50, बी फॉर 48, सी ड्राइव्स 3 hours। ओके, इनको टोटल कर लो भाई। पहले ने 50 पे चलाया, इसने 96 चलाया, और इसने 156 चलाया। डिवाइड बाय 6 hours, टोटल क्या हो गया आपका? 302 2 डिवाइड, तो 51/3 इज द आंसर। बोलो बेटा। Yes, sir. 51/3 इज द आंसर। गॉट इट एवरीवन? यस सर। बहुत ही अच्छा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी शैल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 to 10 करने हैं। चलो 6 to 12 तक कर लो। 6 to 12 तक विजिबल है? 7 क्वेश्चन हो गए। 6 to 12, 10 minutes। Fired for the same time from the same place at an interval of same place interval of 12 minutes। ठीक है, तो ट्रेन सामने से आ रही थी, तो हमें कब सुनाई दिया? वो 10 मिनट के बाद। ठीक है, अब ऐसा समझो कि अगर ट्रेन खड़ी होती तो शॉट 12 मिनट के बाद लगा, तो सुनाई कितने मिनट के बाद देता? 12 मिनट के बाद। 12 मिनट के बाद। अब ये शॉट हमें जल्दी सुनाई क्यों दिया? ट्रेन ने भी मूवमेंट की है। कि हम ट्रेन में आगे चले गए। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब जैसे सपोज करो भाई, मैं यहां से बोल रहा हूं, मैंने बोला डॉट, आपको सुनाई दिया डॉट। फिर मैंने 5 सेकंड के बाद फिर बोला डॉट, आपको फिर सुनाई दिया डॉट। राइट? अब अगर मैं पहला डॉट यहां बोल रहा हूं डॉट, और दूसरा डॉट यहां आके बोल रहा हूं, तो उसकी वजह से आपको डॉट सुनाई देता है 4 मिनट के बाद। ठीक हो गया? यस नो? बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं समझ में आया? यस सर। समझ में। ये जैसा एक लाइन है, यहां से साउंड चल रहा है, यहां पहुंच रहा है। ठीक है, कुछ भी टाइम में पहुंच रहा है। अब फिर दोबारा यहां से चल रहा है, फिर यहां पहुंच रहा है। वो भी जितना यहां गैप होगा, वही गैप यहां होगा। बोलो। बट ये वाला बंदा इधर आ गया, तो जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, राइट, उतना इसने ट्रेवल किया, टाइम सेम लगा। यस सर। राइट? अच्छा, ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस था, ये साउंड 2 मिनट में ट्रेवल करती। बंदा यहां से यहां कितनी देर में आया? ट्रेन कितनी देर में आई? सर 10 मिनट में। 10 मिनट में। दैट इज द आंसर। दैट इज द आंसर। ठीक है, ये बेसिकली रेसिस का कॉन्सेप्ट है कि जहां पे वो मिला अभी, राइट, वो डिस्टेंस पहले साउंड ने ट्रेवल करना था, अब मैंने ट्रेवल किया। बोलो। Yes, sir. मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 90% बंदे ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, राइट? मान लीजिए चंडीगढ़ और बठिंडा की बात लेते हैं कि चंडीगढ़ से एक ट्रेन चलती है, ट्रेन नहीं, बस चलाते हैं। हाँ, चंडीगढ़ से बस चलती है और बठिंडा पहुंच जाती है 5 घंटे में। राइट? यस नो? ठीक है, अब सर पेन चंडीगढ़ नहीं से हो रहा बस काफी देर से। है जी। सब पेन नहीं सो रहा काफी देर से। क्या नहीं हो रहा? सब पेन सो नहीं हो रहा। आप कुछ मैं लिख लिख रहे तो नहीं रहा हैं? कुछ।
ओके सर। हाँ, जब लिखूंगा तब दिखेंगे। तो चंडीगढ़ से जो अपनी ट्रेन चली है तो वो ट्रेन पहुंची है बठिंडा 5 घंटे में। हाँ, अब हम बठिंडा से चंडीगढ़ की तरफ चल दिए, राइट। सपोज करो पैदल चल दिए, तो 4 घंटे में हम आगे गए और ट्रेन हमें मिल गया, राइट। तो जितना डिस्टेंस हमने 4 घंटे में ट्रेवल किया, ट्रेन ने उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। यस, बोलो यस नो। तो हमारा और ट्रेन का स्पीड 4:1 हो गया, क्योंकि वो वाला डिस्टेंस, मान लो वो ए पॉइंट है, बठिंडा टू ए पॉइंट आई ट्रेवल्ड इन 4 hours एंड ट्रेन वुड हैव ट्रेवल्ड इन 1 hour, 1 hour. राइट। नाउ अब जहां पे उसको दूसरी गोली सुनाई दी, दैट इज ए पॉइंट ए। Now the sound would have traveled that distance in 2 minutes, and we traveled that distance in 10 10 minutes. minutes. 10 minutes. So my ratio of the speed is 5:5, right? Very sure. कहानी आ गया भाई, ट्रेन और उसकी से फिर बाकी तो निकाल ही सकते हैं, राइट। सर 2 मिनट के बाद 10 मिनट वाला समझ नहीं आया सर, वो 10 अरे मिनट। भाई 2 मिनट कब हुए, 12 मिनट में सुननी थी ना हमें साउंड। हाँ जी सर। हम थोड़ा पास में चले गए, जी सर। मतलब हम 10 मिनट तक पास जाते रहे, जरा जरा सपास आ है, तो ठीक हो गया। तो Yes, इतना पास चले गए कि हमें साउंड सुन गई, जल्दी सुन गई, ठीक है। नॉर्मली हमें 12 मिनट में सुनना साउंड, पर अभी कितनी देर में सुना, 10 मिनट में। बोलो हाँ ना। Yes sir, yes sir. So it means the distance that I traveled in 10 minutes, sound would have traveled in 2 minutes. Yes sir. That is the answer. ठीक हो गया। चलो next question. Man travels partially 4 kilometer at 5 kilometer and partially at 5 kilometer per hour. यहाँ पर आना होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मर होता है पहले वाला, ठीक है। फॉर्मर क्या होता है, पहले वाला। तो मेरा बच्चा अगर वो ये वाला डिस्टेंस भी 4 की स्पीड से करता तो ही कुड कवर 2 किलोमीटर मोर इन द सेम टाइम, ठीक है। तो उतने ही समय में वो 2 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर सकता था, ठीक हो गया। जी सर, अगर ये भी 5 में करता हो। मान लो ये टी टाइम के लिए किया, ठीक है। बोलो ये के टाइम के लिए किया, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो 5t नहीं 4t प्लस 5k इज इक्वल टू 35। मैं बताऊंगा इसको, और आसान तरीका बताऊंगा, पहले ये समझ लो। 4 किलोमीटर से t घंटा, 5 किलोमीटर से k घंटा इज इक्वल टू 35 किलोमीटर। और अगर हैं जी 5 किलोमीटर से t घंटा प्लस 5 किलोमीटर से k घंटा इज इक्वल टू 37 किलोमीटर। ये समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। जी सर। बेसिकली टोटल 7 घंटे आ गया, या इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लो, तो इज इक्वल टू 2 घंटा। बोलो यस सर। अब इसको हम खत्म कर देते हैं सब कुछ। यो 4 की जगह 5 की स्पीड पे जा रहा है। हाँ जी सर। अगर 1 घंटा ये बदली मारेगा तो 1 किलोमीटर का फर्क होगा। हाँ जी सर। अगर 2 किलोमीटर का फर्क चाहिए तो कितना देर बदली मारेगा? 2 घंटा। 2 घंटा। तो ये 2 घंटा चला भैया। 2 घंटे में कितना करेगा? 8। यस सर। तो ये बाकी कितना रह गया? 27। कितनी स्पीड से कर रहा है? 5 क्या आ गया? 5.4। 5.4 जी 4 1/2 7.4
5.4 सर 5.4 आ गया। 5.4 आएगा। 5.4 + 2 7.4 हजार लगे। ठीक है, यस हाँ जी सर बोलो भाई, इज इट क्लियर? यस सर ओके। 7 घंटे लगते हैं बंदे को एक जाने में और वापिस आने में। ठीक है, इधर गया और वापिस आया। ठीक है, ठीक है, इधर वॉकिंग है, इधर राइडिंग है। ठीक हो गया? इधर भी राइडिंग हो जाए तो 5 घंटे में प्रोग्राम हो जाएगा। हाँ जी सर तो व्हेन यू रिप्लेस वॉकिंग बाय राइडिंग यू गेन 2 आवर। बोलो, यस सर यस सर। you replace walking by riding, you will lose 2 hours. यस सर तो 9 hours आंसर आ। ज्यादा आसान हो गया क्या? सर डायरेक्ट कैसे ऐड करते हैं? डायरेक्ट कर दिया। अगर देखो तुम समोसा खरीदते हो और आधी कचौरी खरीदते हो, ठीक है, आधे समोसे और आधी कचौड़ी, तो भाई आपके कितने रुपए लगते? 70 रुपए लगते। ठीक हो गया? अगर सारी कचौड़ी निकाल दे, सारे समोसे ले लें, तो भैया तुम्हारे 50 रुपए लगते हैं। अब अगर सारी कचौड़ी होगी तो कितने लगेंगे? 90 ना? हाँ सर, जितने निकले उतने ऐड करना पड़ेगा। भाई उधर क्या किया, समोसे को कचौरी से रिप्लेस किया, 2 घंटे लुट गए। उसको उधर किया तो 2 घंटे गेन हो गए। जितने कम हुए उतने ऐड करना पड़ेगा। बस, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। क्या है? डिस्टेंस सेम है। ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में सीमैट में आने वाला क्वेश्चन है, आ सकता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन है, क्या करना? गड्डी लेके आनी है अपन, है ना? हाँ, एक ट्रेन है, 15 सेकंड में एक पोल को पास कर देती है। ठीक हो गया भाई? बोलो। अच्छा, और 100 मीटर के प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पास करती है। तो क्या ये डबल केस हो गया हमारा जो 5th वाला केस है? ठीक हो गया ना? तो क्या हम ये कह सकते हैं, पहले ये पोल है और ये मेरी लेंथ है, ठीक है, अब जब ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी, मान लो ये ट्रेन है, ये ऊपर से धुआं निकल रहा है, थोड़ा सा ऊपर से इधर, ये वाला देखो, क्लोजली देखो, ये धुआं निकल रहा है ट्रेन से। तो ये ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी पोल को, वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, लेट इट बी ए प्लेटफॉर्म, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, तो यहां से आना शुरू हुआ, यहां पे क्रॉस करके, तो वो प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ दोनों को क्रॉस करेगी। अगर मैं दोनों केसेस का डिफरेंस लेता हूं, क्या लेता हूं? डिफरेंस दोनों केसेस का, तो भाई प्लेटफॉर्म की लेंथ का ही डिफरेंस आया नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो। यस सर। सागर रत्ना में जाएंगे, वो कहेंगे भाई ये मसाला डोसा है विद वड़ा, ये अकेला मसाला डोसा है। ठीक है, तो मसाला डोसा विद वड़ा में से मसाला डोसा का प्राइस माइनस कर दो तो खाली वड़े का प्राइस आ गया नहीं? यस सर वही चीज है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रेन की लेंथ लग रही है, ठीक है, और जब उसको कर रहे हैं तो देखते हो ना, कई बार भी स्पेशल थाली है, ये नॉर्मल थाली है। अब स्पेशल थाली में क्या है? 2 ही तो आइटम है। हैव यू सीन दैट वे? एक मीठा हो गया, एक पनीर की हो गई। हाँ, और सो देयर यू रियलाइज इट। जब आप जीवन में मैथमेटिक्स लगाते हैं तो क्वेश्चनों में भी उससे अलग नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जीवन का मैथमेटिक्स आप अलग कर देते हैं और कैट का सीमैट का अलग कर देते हैं, फिर दोनों नहीं आते। ठीक है,
ऐसे ही जो आरसी करते हैं और आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो साथ में ही है, क्योंकि ज्योमेट्री पहले नहीं बनी, इंसान पहले बने, ज्योमेट्री इंसानों से निकली है, राइट। जितना भी वर्बल है वो इसीलिए निकला क्योंकि हम कम्युनिकेट करते हैं। तो पहले इंसान ने कम्युनिकेट शुरू किया, फिर उसके बाद ग्रंथ लिखे गए, नॉवल लिखे गए, वर्ड्स डेवलप हुए, ठीक है, जो कि सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज में हुआ है। एनिमल को देखा कभी डिक्शनरी लेके चेक करते हुए भाऊ 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 का क्या मतलब है? वो इतने सालों से भाऊ ही चला। दे हैव स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन। जब कोई बिस्किट डालेगा कुत्ता पूंछ हिलाएगा, और वो ऐसे ही हिलाएगा, ऐसे नहीं हिलाएगा। सिंपल सा फंडा है। व्हेन ही इज ओबीडियंट, उसकी पूंछ ऊपर की बजाय नीचे को डाउन हो जाती है, राइट। उसकी टांगों के बीच में आ जाती है। देखना, ये पूंछ पे स्टडी करना बहुत बढ़िया ईमानदारी स्टडी है, ठीक है, ओके। ऐसे ही इंसान है, जब किसी से मिलने जाते हैं, राइट, और उनको खुद को जाना होता है, वो ऐसे नहीं कहते कि मेरे को जाना है, अब कहते अब आप आराम करो, अब आप रेस्ट करो। अरे भाई, वो तो पहले भी कर रहा था, फिर पहले क्यों डिस्टर्ब किया उसको, राइट, है ना। दे डोंट से अच्छा आपको भी बहुत काम होगा, राइट, क्योंकि इंसान जो है उनका मैकेनिज्म थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इतने सालों से ना कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले इंसान हंटर एंड गैदरर थे, सिंपल, राइट, कोई ट्रेन नहीं, कोई टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं, कोई बोट सेंड स्टीम नहीं, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है क्योंकि हमारा डेवलपमेंट हुआ है ना। 25 साल पहले जो था वो आज बिल्कुल बदल गया है। चाहे वो आपका खाना है, चाहे वो रहना है, चाहे वो आपका रूम है, आपके कपड़े हैं, या जैसे आप क्लासेस लगाते हैं, ठीक है। अब आप फैजान भाई चाय की चुस्की लेते हुए क्या एकदम खतरनाक सीमेंट का क्लास लगा रहे नहीं लगा रहे? अब 2 साल पहले कहाँ पॉसिबल था ये, राइट। लगा सकते थे आप चाय, गरम गरम चाय, गरम चाय की प्याली हो, सी मैट के क्वेश्चन हो रहे हो, हाँ। चलिए, सो जीवन को उसके साथ लिंक किया करो, ठीक है ना। उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और एजुकेशन का फायदा भी होता है। एजुकेशन का, अदरवाइज ये किताबों इंफॉर्मेशन लेके क्या करोगे यार, गूगल पे सब है, राइट। अभी तक हमारा नॉलेज क्या है, एजुकेशन क्या है? मेमोराइजिंग ऑफ द फैक्ट्स, वॉमिटिंग इट इन द एग्जामिनेशन, एंड whosoever can vomit well can get good rewards। ये हमारा एजुकेशन है। समझ आया, नहीं आया, भाड़ में गया, ठीक है भैया। पेपर में लंबा लंबा लिखा, राइट, और वैसे ही लिखा जैसे टीचर ने बताया था, तो नंबर पूरे हैं, ठीक है। उसका डेली लाइफ में, जीवन में रेफरेंस क्या है? अब जैसे फैजान भाई है, इनको डंडी दी गई है ना, कप के साथ डंडी है, पर डंडी को पकड़ के नहीं चाय पी रहे। ये ह्यूमन स्टडी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? डंडी दी है ना, तो लॉजिकली क्या करना चाहिए? डंडी से पकड़ के चाय पीना चाहिए भाई, बोलो हाँ या ना, है ना। पर नहीं, डंडी का इस्तेमाल नहीं करे, अपना स्टाइल है, ठीक है। और इसीलिए इंसान वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो, इनकी बात करें और इनको मजा आ रहा है, खुश भी हो रहे, ठीक है। बट डॉगी ऐसा नहीं करते। किसी भी डॉगी को डंडा मारो वो भाऊ ही करेगा, राइट। उसको बुरा कहेंगे वो काटने को ही आएगा, बट इंसान कहता है नहीं, इसमें भी मेरा ही फायदा है, राइट। इंसान विचित्र प्राणी है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स आइटम। एनीहाउ, मैं तो वैसे ही कह रहा था, है ना। डोंट थिंक, I'm just telling you. So try to relate your knowledge, your understanding with real life. The better you can do, the better you are learning. Right? ऐसा क्यों होता है ना? क्यों होता है प्यार, क्यों चलती है पवन? पूछा ना, कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, साइंस के क्वेश्चन है सारे, है? क्यों चलती है पवन? बताओ भाई, पवन क्यों चलती है? कितना अच्छा बताया उसने, है? तो बताओ कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है और पोल्स के ऊपर रोटेशन होती है और उसके बाद टाइड्स जनरेट होती हैं तो पवन चलती है, ठीक है। चलिए, हमारा क्वेश्चन में कहां तक पहुंचे? 7 बजे ट्रेन चलती है भैया। अच्छा, वो रह गया,
तो 15 मिनट जो एक्स्ट्रा लगे वो काहे को लगे, काहे के भाई 15 मिनट एक्स्ट्रा ये? सर प्लेटफॉर्म के प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 100 मीटर। तो 100 मीटर को 15 सेकंड लग रहे हैं, राइट? बोलो, गुना 4 कर दो, 400 मीटर को कितना देर लगेगी? 1 मिनट। एक पूछा क्या? लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा बस ठीक है, तो ट्रेन कितना देर में खुद उसको क्रॉस कर रही है, पोल को? सर दोनों की 15-15 ही हो गई, उसकी भी 100 हो गई। 15 हो गई, आंसर 100 आ गया वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन पी 7 बजे एट 60 किलोमीटर पर आवर पे ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलती जा रही है। ट्रेन का क्या काम है? ट्रेन का काम है चलना, सदा ही चलते रहना। और 1 बजे दूसरी ट्रेन स्टार्ट होती है, कितने, कहां से? वहीं से, ऑपोजिट डायरेक्शन से सर। दिया है डायरेक्शन? जी सर। दिया, ठीक है। तो दिस इज ए स्टैंडर्ड केस ऑफ तू चल मैं आया, ठीक है? तू चल मैं आया का केस हो गया बेटा। एक बंदा पहले चल रहा है, एक बंदा बाद में चल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले चल रहा है उसको उस टाइम तक ले आएंगे जब तक वो अकेला था। कितना घंटा अकेला चला वो? 6 घंटा, 360 ठीक है। तो 360 इज कवर्ड अलोन। 1200 में से 360 माइनस कर दो, कितना बच गया? 840। अब ये भाई दोनों भाइयों को मिलके है ना, अब बन गया आन मिलो सजना। ये इधर से आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, हाँ? 40 by 140 मिलो न हमसे hours. ज्यादा। 140, 840 by 140, 840 by 140, 6 घंटे। तो 7 PM हो जाएगा। 7 PM आ जाएगा, And ठीक है। नेक्स्ट, अब व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू से ट्रेन कब चली? 2 बजे और 1 बजे सॉरी। PM। और किस स्पीड से? 80 से 6 घंटे। 6 घंटे, 480 आंसर आ गया, ठीक है। यस सर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने इतने बार एग्जाम्स में देखे हैं, इतने बार देखे हैं, क्योंकि इतने से ना, देखो मैं जब लेयर्ड क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, मैं 2 क्वेश्चन कवर करता हूं। मैं सिंगल क्वेश्चन पूछूंगा, एक ही क्वेश्चन कवर होगा। जैसे 9th क्वेश्चन है, मैंने पोल और प्लेटफॉर्म दोनों दे दिए, तो एक क्वेश्चन में मैंने 2 चीजें टेस्ट कर ली नहीं। चलो नेक्स्ट, 3/4 किलोमीटर स्पीड अगेंस्ट दिस एंड रिटर्न इन दिस मिनट, ठीक है। बस पहले 3/4 किलोमीटर है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 3/4 लिख लेंगे। इसको लिख सकते हैं 3/4, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी ऑप्शन जो है वो क्या है, पर ये मिनट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये हो गया 45 मिनट। बोलो है ना? यस सर। डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो क्या बन गया? किलोमीटर, ओ सॉरी आर बनी। तो 240/45। बोलो, डिवाइड किया ना तो उल्टा हो जाएगा ना बेटी। यस। तो ये कट करके आ गया हमारा 60, ये कट करके आ गया 15, तो ये स्पीड आ गई 4, ये स्पीड आ गई 4, ठीक है। अब इसकी स्पीड देखो क्या है, स्पीड ऑफ द मैन इन वाटर, तो 4 से तो ज्यादा ही होगी, नहीं समझे? और यार पानी के खिलाफ बंदा जब 4 स्पीड चल रहा है, तो जब पानी नहीं चल रहा होगा तो 4 से ज्यादा होगा, नहीं ज्यादा ही होगा सर। ऑप्शन आ गया, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसको बोलते हैं सतर्कता, ठीक है। सजगता, सजगनेस है ना, कौन, द एबिलिटी टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, अलर्टनेस। आर यू गेटिंग? अच्छा ऐसा होता है ना, आप पेपर करके आते, अरे यार ये क्वेश्चन तो आता था मेरे को, ये क्वेश्चन तो हो सकता था, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था, ये मेरे को दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि उस समय आप प्रस्थित नहीं थे, उपस्थित नहीं थे। यू आर नॉट इन द लिव प्रेजेंट मोमेंट, तुम्हारा दिमाग उस समय चला नहीं, राइट? तो उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन करना पड़ेगा।
प्रे करना पड़ेगा, रोज किया करो। ये इसका रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई एडवाइज यू ऑल, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट निकाल के ना हर रोज रिचुअल बना लो। अब क्या है कि भाई अगर हम रिचुअल नहीं बनाएंगे ना तो फिलॉसफी में चले जाएंगे, फिलॉसफी में चले जाएंगे फिर बंदा काम करता नहीं है, राइट। गो टू टेम्पल और मॉसिक्यू और जो भी आपका रिलीजन कहता है एवरी डे, ठीक है। कोई पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई फूल पत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो देयर, सिट फॉर 10 मिनट्स, कम बैक, दैट्स इट। दैट इज द प्लेस फॉर दैट थिंग, राइट। नहीं समझे? बाकी जितना भी कुछ दे रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू गॉड, यू आर गिविंग इट टू द पीपल ओवर देयर, राइट, और यू आर वेस्टिंग इट, इजंट इट? नहीं समझे? क्या करने का है? कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस है, कोई फॉर्मेलिटी, कुछ जरूरी नहीं है वहां जाके। आपका मन करता है आप कर सकते हैं, यू कैन डू चैंटिंग ओवर देयर, यू कैन रीड मंत्रास ओवर देयर, नथिंग लाइक इट, राइट। बट डोंट गेट इनटू द फॉर्मेलिटीज, राइट। कि भावनाओं में ठीक है भाई, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट आप मेडिटेशन करने का है, रेगुलर करेंगे मेडिटेशन, सीख लीजिए कहीं से, बहुत हेल्प करता है। और तीसरा और आखिरी चीज, हर रोज खेलेंगे 1 घंटा, जीवन में रोज खेलना है मेरा बच्चा, ठीक है। तो ये चीजें अगर करेंगे आप, ठीक है, आपका क्लास का परफॉर्मेंस यूं शूट अप होगा, आप देखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूं, अपने पिछले 25-30 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, राइट। अदरवाइज आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट, एंड was not that intelligent as you people are, right, was not that resourceful as you people are, right. और I have seen many people doing great, पर उसका बेसिक है ये, फर्स्ट बेसिक 3 चीजें, मेडिटेशन, प्रेइंग एंड प्ले, ठीक हो गया। तो 3P मॉडल बना दिया हमने, 3P मॉडल बाय सोगो। MBA करोगे ना तो मॉडल बहुत बनाते हैं। 3P मॉडल क्या कहता है? प्रैक्टिस नहीं, प्लेइंग, प्राणायाम एंड प्रेयर। मेक दीज 3Ps 4th P पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बोलो भाई, समझ आया? यस सर। 1 घंटा खेलना, आधा घंटा मेडिटेशन, 15 मिनट प्रे, बस इनफ। कर सकते हैं? चलो कल मेरे को बताना किन्हों ने किया, कौन लोग ये टाइम लगा पाए। जो लगा पाए ठीक है, नहीं लगाए वो भी ठीक है। आ जाओ बेटा, वापिस आ जाओ, हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, 3/4 ये हो गया। बट अगर इसको भी निकालना पड़ता, इसको भी हम वैसे ही लिखते बेटा। कैसे लिखते? 3/4 डिवाइड बाय, क्लियर नहीं हो रहा सर वो। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ, 3/4 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय बोलो। 240 बाय, नहीं ये वाला करेंगे ना, 120/15 sir. डिवाइड बाय 7.5 इंटू 60, ठीक हो गया ना। तो ये फ्रैक्शन का ही खेल है। 3/4 डिवाइड बाय 7 या 15/2 कर लो, या 7.5 इंटू 60, इसको सॉल्व करना है, ठीक हो गया। चलिए जी, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, फटाफट करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 13 विजिबल है? क्वेश्चन विजिबल है?
Yes, sir. No, 13 to 17. 13 question to 17 question. 3 and 3 and 2, 5. 7 minutes. 7 minutes. हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन. Distance of a car runs on 1 liter petrol is proportional to square of the speed at which it is driven.
square. It gives a run of 25 kilometer. ठीक है, बोलो 36 किलोमीटर पर आवर पे 25 की स्पीड दे रही है, ठीक हो गया? बोलो जी। हाँ, तो ये बोल रहा है कि भाई अगर इसको हमने किस पे करना है, 36 पे चलाना है तो कितने का स्पीड होना चाहिए? देखो, तो हमारा क्या है, एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्पीड का स्क्वायर, राइट? यस कैन वी से दैट? तो एवरेज इज इक्वल टू, एवरेज कितनी है 25, स्पीड का स्क्वायर कितना है 1 बाय 36 का स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्स इसके कारण आया, ठीक है? तो अब हमारा एक्स क्या आ गया बेटा, 25 इंटू 36 का स्क्वायर, बोलो। यस यस सर। अब यहां से हम क्या पुट करेंगे कि ये वाला कंडीशन कि 36 का अगर एवरेज चाहिए तो 36 इज इक्वल टू 1 बाय के का स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्या है 25 गुना 36 का स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, के स्क्वायर आ गया 25 गुना 36 900, के इज इक्वल टू 30, तो 30 आंसर आ गया। कुछ लोगों को ये सवाल समझ नहीं आया होगा, नहीं आया ना? बोलो। यस सर, नहीं है। नहीं आया, चलो सिंपल भाषा में समझो। ये 25 लीटर की एवरेज है, दिस क्रॉसपॉन्ड्स टू, इसका स्क्वायर क्या होता है 1296, राइट? बोलो, इसका स्क्वायर क्या होता है 1296 होता है, तो 1 बाय 1296 की स्पीड जो देगी मेरे को 25 देगी, बोलो। यस सर। तो मेरा 36 कब आएगा, 36 कब आएगा वो वैल्यू पता करनी है रेशो से। तो अगर हम कहें कि भाई ये मेरा स्पीड है, ये मेरा ये है, इनका रिलेशन कांस्टेंट हो गया, ठीक है? तो जब ये 36 होगा तो ये 1 बाय 900 हो जाएगा, 900 मतलब 30 आ जाएगा, राइट? जी सर। अब बोर्ड starting to get a sense of
तो वो 5 आवर्स में कर रहा है ना बेटा, तो कैसे लिखेंगे इसको? 40/d प्लस 40/up 90/d is equal to 5 hours. 60/up plus 90/d और 60/d 60/d is equal to 5 hours. 5. या इसको ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो रेशो है वो 2:3 है। कैसे? कि ये 60-60 में भी उतना ही टाइम ले रहा है, ये तो लंबा चला जाएगा थोड़ा सा, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये 30 आवर्स अप है, ये 20 आवर्स डाउन है। मतलब इसको इससे चेंज करेगा तो टाइम उतना ही रह रहा है। तो इट मीन जितना इसको इधर टाइम जाता है उतना इसको टाइम जाता है, तो 2:3 आ गया। तो 60 को 2:3 में डिवाइड करना है ताकि 5 आ जाए। तो ये एक 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और बीच में 25 आ गया। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय ऑप्शंस आल्सो। या तो ये इक्वेशन सॉल्व कर लो दो, बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Solve these two equations, or you solve by ratio, or you solve by option. Next question. पढ़ना बेटा। A young man can do a job in 10 days. His father takes 15 days while his grandfather finishes it in 20 days. They work together for 2 days. The young man left the job. His father left the job a day earlier than the completion of the work. The job was completed in 26 वर्क्स हो गए। yes sir. हाँ जी सर। Yes sir. There ये कौन है? बॉय, फादर, ग्रैंडफादर। yes sir. ये 6 वाला बॉय है। और लास्ट वाले दिन कौन है? लास्ट वाले दिन सर अकेले यंग मैन लेफ्ट द जॉब, हिज फादर लेफ्ट द जॉब डे अर्लियर। सिर्फ ग्रैंडफादर रह गया लास्ट वाले दिन, तो वो 3 कर देगा। yes sir. तो हाउ मच वर्क इज लेफ्ट? 31 वर्क इज लेफ्ट। 31%. बोलो यस नो। Yes sir. Who will do this 31 work? These दोनों। Father and grandfather. divide by 7. So this comes 4 3/7 plus 3 days. So 7 3/7 is the total work पूछा ना, तो job was completed in. ठीक हो गया? यस सर। Yes sir. There is another way to do that. Shall I try? Yes sir. Yes. So 10, 15, 20, total is your 6, 4, 2, 3. This is your how much? 60. 60. 2 दिन अगर बच्चा काम नहीं करता तो -12 वर्क्स हो जाते। ठीक है, Yes sir. और अगर फादर एक दिन काम कर लेता तो ग्रैंडफादर नहीं, फादर, तो +4 वर्क्स हो जाते। In the whole process, grandfather and father has worked, right? What are the 2 exceptions? The boy has worked for 2 days and grandfather has not worked for 1 day, right? So let us assume boy has not worked and father has worked. Yes? So this gives me 48, 52, 52/7, 7 3/7 is the answer. Next question. ABC can do a job in 15 days. After working with B and C for 5 days, A leaves. Then B and C finishes it in 20 days more. In how many days can A do the job alone?